میری بہن کی شادی تھی لیکن میں نہیں جا پایا، مجھے چھٹی نہیں مل سکی۔ جب اتوار کو میں گھر آیا تو بہن کی شادی ہو چکی تھی۔ ابا جی بولے اگر تم بہن کے گھر گئے تو اس کا گھر برباد ہو جائے گا، کیونکہ اس کی شادی بہت امیر خاندان میں ہوئی ہے اور تم ایک چوکیدار ہو۔ 2 مہینے بعد میں اپنی بہن کے گھر گیا تو اس کے شوہر کو دیکھ کر میں چونک گیا، کیونکہ وہ تو میرے لیے وہ دن کسی خوشی سے کم نہیں تھا جب مجھے ہسپتال میں چوکیدار کی نوکری ملی تھی۔ خوشی مجھے اس بات کی تھی کہ میں اب اپنے ماں باپ کا سہارا بنوں گا اور اپنی بہن کو بھی خوب پڑھاؤں گا۔ میرا نام بلال ہے اور میں بہاولپور کے خوبصورت شہر کا رہنے والا ہوں۔ میری ایک ہی لاڈلی بہن ہے جس کا نام زینب ہے، کیونکہ زینب مجھ سے چھوٹی تھی اسی وجہ سے وہ لاڈلی تھی۔ میری تو اس میں جان بستی تھی۔ زینب نے میٹرک بہت اچھے نمبروں سے پاس کیا، کیونکہ پڑھائی میں وہ ہوشیار لڑکی تھی، اس لیے وہ آگے پڑھنا چاہتی تھی، لیکن گھر کے حالات اس بات کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ ان دنوں میں بھی گھر میں خالی بیٹھا تھا، میرے پاس کوئی نوکری نہیں تھی۔ میرے ابو جی کی ایک چھوٹی سی کریانے کی دکان تھی جس سے بڑی مشکل سے ہمارے گھر کے خرچے پورے ہوتے تھے۔ گھر کے حالات کو دیکھتے ہوئے زینب نے آگے پڑھائی نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ آگے پڑھنا چاہتی ہے۔ اس بارے میں میں نے ابو جی سے بات کی تو وہ بولے کہ اتنا پڑھ کر کیا کرے گی، آخر میں کرنے تو گھر کے کام کاج ہی ہے نا۔ میں نے شہر میں گورنمنٹ کالج کا پتہ کیا تو ایڈمیشن فیس 8,000 تھی۔ میں نے اپنے دوستوں سے 8,000 ادھار لے لیے اور زینب سے بولا کہ تیار ہو جاؤ۔ وہ بولی بھیا کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا تم جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ میں نے اسے بتایا کہ آج کالج میں تمہارا داخلہ کروانا ہے تو وہ بولی بھیا داخلہ فیس کہاں سے آئے گی؟ ابو جی نے تو منع کر دیا ہے کہ جتنا پڑھ لیا ہے اتنا کافی ہے۔ تو میں بولا تم فکر نہ کرو، میں ابو جی سے خود ہی بات کر لوں گا اور میں نے داخلہ فیس کا بھی بندوبست کر لیا ہے۔ میں نے اپنے کچھ دوستوں سے پیسے ادھار لیے ہیں، جب میں کام پر جانے لگوں گا تو انہیں دے دوں گا۔ تم بس کالج جانے کی تیاری کرو اور دل لگا کر پڑھائی کرو، میں تمہیں بہت اونچائیوں پر دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو زینب بولی نہیں بھیا، ابو کی اجازت کے بغیر کالج میں داخلہ نہیں لوں گی۔ رات کو جب ابو جی آئے تو زینب نے انہیں کھانا دیا۔ کھانا کھانے کے بعد میں ابو جی کے پاس چارپائی پر بیٹھ گیا اور بولا ابو جی آپ سے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ تو وہ بولے بیٹا ہاں بولو کیا بات ہے؟ میں نے کہا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں زینب کا کالج میں داخلہ کروا دوں، آپ فکر نہ کریں، میں نے فیس کا بندوبست کر لیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ زینب کو پڑھنے کا کتنا شوق ہے، میں نہیں چاہتا کہ وہ گھر کے حالات کی وجہ سے اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ دے۔ بڑا بھائی ہونے کے ناطے میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس کی ہر خواہش کو پورا کروں اور میں اس کی خواہش ضرور پوری کروں گا۔ تو ابو جی بولے دیکھ لو بلال بیٹا، ابو جی نے جیب سے نکال کر مجھے کچھ پیسے دیے تو میں بولا ابو جی میرے پاس پیسے ہیں، یہ آپ اپنے پاس رکھ لیں، اگر ضرورت پڑی تو میں آپ سے لے لوں گا۔ میں فوراً زینب کے پاس گیا اور اسے کہا کہ تم تیار رہنا، کیونکہ میں نے ابو جی سے اجازت لے لی ہے، انہیں تمہارے کالج جانے پر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ سن کر زینب بہت خوش ہوئی۔ میں نے اسے تنگ کرنے کے لیے کہا دیکھو تو خوشی سے کتنی موٹی ہو گئی ہو۔ وہ چڑ گئی اور مجھ سے ناراض ہوتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اگلی صبح میں زینب کو ساتھ لے کر کالج آ گیا۔ اس کا داخلہ کروانے کے بعد ہم واپس گھر آ رہے تھے تو زینب بولی بھیا مجھے بریانی کھانی ہے۔ ہم لوگ بریانی کھانے دکان پر رکے، میں نے وہاں سے 2 پلیٹ بریانی آرڈر کر دی۔ میں نے دکان والے سے کہا کہ 2 پلیٹ بریانی پیک کر دو، تو زینب بولی بریانی نہیں بھائی، گھر پر جب تک ہم پہنچیں گے
तब तक बिरयानी तो ठंडी हो जाएगी, हम लोग यहीं पर बैठकर खा लेते हैं। तो मैं इसे लेकर दुकान के अंदर चला गया जहां मेज लगी हुई थी। हम दोनों एक मेज के पास में पड़ी हुई कुर्सी पर बैठ गए। हम दोनों बिरयानी खाने में बिजी थे। तभी मुझे ऐसे लगा कि कोई हमारी तरफ देख रहा है। जब मैंने बराबर में बड़े मेज की तरफ नजर दौड़ाई तो इधर कुछ गुंडे नशे की हालत में कुछ कमेंट्स पास कर रहे थे। इस बात पर मुझे बहुत गुस्सा आया, इसलिए मैं इन्हें सबक सिखाने के लिए उठा तो ज़ैनब ने मेरा हाथ पकड़ लिया। नहीं भैया, इन जैसे लोगों के मुंह नहीं लगते, चलो हम यहाँ से चलते हैं। मैं इस वक्त इतने गुस्से में था कि अगर ज़ैनब ना होती तो शायद मैं इनका खून कर देता, क्योंकि मैं अपनी बहन के बारे में इस तरह के लफ्ज़ जो वो बक रहे थे ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ज़ैनब को घर छोड़कर दोस्तों से मिलने का बहाना करके इसी बिरयानी वाली दुकान पर गया, लेकिन मुझे वहाँ पे गुंडे नहीं मिले। इसके 2-3 दिन बाद ज़ैनब ने कॉलेज जाना शुरू कर दिया। मेरी रोज़ की रूटीन थी कि मैं सुबह इसको कॉलेज छोड़ के आता और छुट्टी के वक्त लेने के लिए जाता। एक दिन छुट्टी के वक्त जब मैं ज़ैनब को लेने के लिए कॉलेज गया तो मैंने इन गुंडों में से एक को कॉलेज के बाहर देखा। लड़कियों के कॉलेज के बाहर लड़कियों की भीड़ थी, इसलिए मैं ज़ैनब को लेकर घर आ गया। अगले दिन ज़ैनब को कॉलेज छोड़ने के बाद मैंने सोचा कि आज छुट्टी से पहले ज़ैनब के कॉलेज के बाहर जाऊंगा। अगर मुझे वही गुंडे दिखाई दिए तो मैं इसकी खूब धुलाई करूंगा। ज़ैनब को कॉलेज छोड़ने के बाद जब मैं वापस घर आ रहा था तो रास्ते में मुझे एक मेरा दोस्त मिला। इसने कहा कि एक जगह काम के लिए एक हेल्पर की ज़रूरत है, तुम वहां पर पता कर लो, हो सकता है तुम्हारा काम बन जाए, लेकिन इसके लिए तुम्हें आज ही जाना होगा। ये ना हो कि वो किसी और को काम दे दे। मैं इधर से सीधा काम का पता करने के लिए चला गया। मुझे वक्त का पता ही ना चला। जब मैंने टाइम देखा तो 3 बज रहे थे। मैं जल्दी से ज़ैनब को लेने के लिए चला गया क्योंकि मैं पहले से लेट हो गया था। जब मैं कॉलेज पहुंचा तो ये देखकर मेरे गुस्से की हद ना रही कि इन गुंडों में से एक लड़का जिसका नाम असद था ज़ैनब के पास खड़ा बातें कर रहा था और ज़ैनब इस कदर घबराई हुई थी कि इसके पसीने छूट रहे थे। मैंने इस लड़के को इसके कॉलर से पकड़ा और एक जोरदार तमाचा इसके मुंह पर मारा। बदले में वो भी मुझे मारने लगा। ज़ैनब इसके आगे हाथ जोड़ने लगी कि खुदा के लिए मेरे भाई को छोड़ दो। वो बोला, एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं तुम्हारी बहन से प्यार करता हूँ और मैं इसे हासिल करके ही रहूँगा। मैं इसे तब से पसंद करता हूँ जब मैंने इसे बिरयानी वाली की दुकान पर देखा था। मैं बोला, अपनी जुबान बंद रखो, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। अगर तुमने मेरी बहन की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो वो बोला, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इस शहर में मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे सर से खून बह रहा था और खून को देखकर ज़ैनब पागल हो रही थी। वो मुझे बड़ी मुश्किल से खींचते हुए घर ले आई। घर जाते ही इसने मेरे सर पर दवाई लगाई। माँ भी मेरी चोट देखकर परेशान हुई। मैंने ज़ैनब को सख्ती से मना कर दिया कि इस बारे में अब्बू जी को कुछ भी ना बताए। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए मैं कमरे में जाकर लेट गया। कुछ देर के बाद ज़ैनब दूध में हल्दी डालकर मेरे लिए लेकर आई तो मेरे आगे दूध का गिलास रखते हुए बोली, भैया मैं कल से कॉलेज नहीं जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप पर कोई मुसीबत आ जाए और वो फिर किसी अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद लगता है। हम गरीब इन जैसे अमीरों का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए बेहतर यही है कि मैं कॉलेज छोड़ दूं। मेरा एक ही भाई है और मैं इसे खोना नहीं चाहती। तो मैं बोला, तुम क्यों कॉलेज छोड़ोगी? आज इसकी धुलाई कर दी है, तुम कल देखना वो नहीं आएगा, फिर तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारी हिफाजत के लिए तुम्हारा ये भाई अभी जिंदा है। चलो जाकर पढ़ाई करो, मैं कुछ देर आराम कर लेता हूँ। अभी मैं लेट ही रहा था कि दरवाजे पर जोर से दस्तक होने लगी। इससे पहले कि मैं उठता माँ ने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा एक ज़ोरदार आवाज़ से खुला। मैं जल्दी से उठकर कमरे से बाहर आया तो मेरे सामने हथियार लिए 3 आदमी खड़े थे। इनके पीछे से एक मोटा आदमी आया और मुझसे बोला, तुम्हारा नाम ही बिलाल है? तो मैं बोला, जी हाँ। तो वो कहने लगा, तुमने मेरे बेटे के
साथ मारपीट करके अच्छा नहीं किया। मैं तुम लोगों का इस जमीन पर रहना मुश्किल कर दूंगा। इतनी देर में अब्बू जी भी दुकान से आ गए तो वो आदमी अब्बू जी से बोला, अपने बेटे को संभाल कर रखो, मेरे बेटे को तुम्हारी बेटी पसंद आ गई है और ऐसा आज तक नहीं हुआ है कि जिस चीज पर मेरे बेटे ने हाथ रखा हो और वो इसे ना मिली हो। तो मैं बोला, ये चीज नहीं है और ये मेरी बहन है, मेरे होते हुए ये नामुमकिन है और मैं बिल्कुल भी अपनी बहन का रिश्ता किसी ऐसे इंसान के साथ नहीं जोड़ूंगा जो आवारा और शराबी हो। तो वो बोला, मैं यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आया हूँ, मैं बस ये बताने आया हूँ कि अगर आप लोग इज्जत से ये रिश्ता कबूल करेंगे तो ठीक है, वरना हमें दूसरा तरीका भी अपनाना आता है। वो आदमी हमें धमकी देते हुए वहां से चला गया। इसके जाने के बाद ज़ैनब के पिछले दिनों में हुई मारपीट के बारे में अब्बू जी को बता दिया। अब्बू जी मुझ पर गुस्सा होने लगे कि मैं पहले से ही मना करता था, लेकिन इस लड़के ने मेरी एक नहीं मानी। तुम नहीं जानते, ये आदमी और इसका बेटा इस शहर के बहुत बड़े गुंडे हैं। किसी दूसरे की जान लेना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है और बहुत से लोगों की बहन बेटियों की इज्जत बर्बाद कर चुके हैं। मैं बोला, अब्बू जी, मेरे होते हुए कोई मेरी बहन की तरफ गलत निगाह से नहीं देख सकता। अब्बू जी बोले, अच्छा जाओ, जाकर आराम करो, सुबह देखते हैं कि क्या करना है। अगली सुबह ज़ैनब कॉलेज जाते हुए बहुत घबरा रही थी तो मैं इसे बोला, तुम परेशान क्यों हो? मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा, बस तुम टेंशन फ्री होकर पढ़ाई पर ध्यान दो और सब कुछ अपने भाई पर छोड़ दो। इस बात को काफी दिन गुजर चुके थे। इसके बाद ना तो मैंने इस लड़के को कॉलेज के बाहर देखा और ना ही हमारे घर पर आया था। मैंने सोचा कि ये लोग इस बात को भूल गए होंगे, लेकिन इस दिन के बाद से मैंने नोट किया कि अब्बू जी कुछ परेशान रहने लगे थे। आखिर एक दिन मैंने पूछ ही लिया कि अब्बू जी, आप इतने परेशान क्यों रहते हैं? क्या कोई परेशानी वाली बात है? तो वो बोले, बेटा नहीं, परेशानी वाली कोई बात नहीं, बस मुझे तुम्हारे काम की फिक्र है। इस सिलसिले में मैंने पत्तों की में तुम्हारे ताया से बात की है, वो कह रहे हैं कि 1-2 दिन के अंदर वो काम का पता करके बता देंगे। मैं बोला, अब्बू जी आप फिक्र ना करें, मैं इधर ही काम देख रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मुझे यहाँ पर ये काम मिल जाएगा और फिर अगर मैं पत्तों की चला गया तो मेरे बाद आप लोगों को कौन देखेगा और ज़ैनब को भी कॉलेज छोड़ना है, फिर लेकर आना होता है। तो अब्बू जी बोले, तुम ज़ैनब की फिक्र ना करो, मैं खुद ही इसे छोड़ भी आया करूँगा और लेकर भी आया करूँगा। इससे पहले मैं कुछ बोलता और अब्बू जी बोले, अभी काम तो मिलने दो और वैसे भी मैं तुम्हें यहाँ पर तो काम मिलने से रहा, अगर यहाँ पर मिलना होता तो कब का मिल गया होता। 3 दिन के बाद ताया अब्बू का फोन आया। वो अब्बू जी से बोले कि बिलाल को आज ही भेज दो। तो अब्बू जी बोले, क्या काम मिल गया है? ताए ने कहा कि अस्पताल में चौकीदार की ज़रूरत है, अगर आप ठीक समझो तो बिलाल को वहां से रवाना कर दो। और इस तरह मैं बावलपुर से पत्तों की चला गया। वहां मैं ताए के घर पर ही रहता था। सुबह होते ही नौकरी पर जाता और शाम को घर लौटता। ड्यूटी के दौरान पता ही ना चलता कब शाम हो गई, मेरा सारा दिन ऐसे ही गुजरता था। अस्पताल में इतवार को छुट्टी होती थी। अब्बू जी ने जल्दी जल्दी घर आने से मना किया था, बोले कि अगर तुम हर महीने घर आया करोगे तो जो कमाओगे वो किराए पर ही लग जाया करेंगे और तुम्हारा हर महीने घर आना ठीक नहीं है। मैंने हामी भरते हुए कहा कि जी अब्बू जी, जैसे आपकी मर्जी, मैं वैसा ही करूँगा। अभी मुझे यहाँ आए हुए 2 हफ्ते हुए थे कि अब्बू जी ने फ़ोन पर मुझे बताया कि हमने ज़ैनब का रिश्ता पक्का कर दिया है। मुझे ये सुनकर बड़ी हैरत हुई क्योंकि ज़ैनब अभी फर्स्ट ईयर की तालबा थी, बहुत छोटी थी, वो तो बस पढ़ना चाहती थी। मैंने अब्बू जी से कहा, अब्बू जी इतनी जल्दी आप ज़ैनब की शादी ना करें, वो अभी छोटी है। तो अब्बू जी बोले, लड़कियों की शादी इसी उम्र में हो जानी चाहिए और फिर इतने अच्छे घराने से रिश्ता आया है कि मैं चाहकर भी मना नहीं कर सकता और फिर ऐसे रिश्ते रोज दरवाजे पर दस्तक नहीं देते।
یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے غریب ہونے کے باوجود بھی انہوں نے ہماری بیٹی سے رشتہ کیا۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، جیسا آپ ٹھیک سمجھے۔ ویسے بھی ماں باپ اپنی اولاد کے لیے اچھا ہی سوچتے ہیں۔ ابھی اس بات کو کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ اب دوبارہ ابو جی کا فون آیا۔ انہوں نے بتایا کہ زینب کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی ہے۔ مجھے یہ سن کر بہت دکھ ہوا کہ میرے بغیر ہی زینب کا رشتہ دیکھ کر اس کی شادی کی تاریخ بھی ابو جی نے طے کر لی، کیونکہ میں اس گھر کا اکلوتا بیٹا تھا، زینب کا اکلوتا بھائی تھا، وہ میری لاڈلی بہن تھی۔ میں نے ابو جی سے کچھ بھی نہ کہا۔ ابو جی بولے جمعے کے دن زینب کی شادی ہے، کوشش کرنا کہ شادی میں شامل ہو سکو۔ میں بولا جی ابو جی، میں ضرور آؤں گا، یہ بھی بھلا کوئی کہنے والی بات ہے۔ پہلے ہی میں نے چھٹی کی درخواست دے دی تھی جو کہ ریجیکٹ کر دی گئی۔ چھٹی کے لیے میں نے بہت بھاگ دوڑ کی لیکن مجھے چھٹی نہ ملی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں نوکری چھوڑ کر گھر چلا جاؤں، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا تھا کیونکہ مجھے یہ نوکری بہت مشکل سے ملی تھی۔ میں نے فون کر کے ابو جی کو بتایا کہ ابو جی مجھے چھٹی نہیں مل رہی ہے، تو ابو جی بولے کوئی بات نہیں، جب چھٹی ملے گی تب آ جانا، لیکن نوکری چھوڑنے کا سوچنا بھی مت، کیونکہ میں نے زینب کی شادی کے لیے بہت سا ادھار اٹھا رکھا ہے جو تمہیں اور مجھے مل کر چکانا ہے۔ اگر تم نوکری چھوڑ دو گے تو پھر دوبارہ نوکری ملنا مشکل ہوگا، اور تم یہاں کی فکر نہ کرو، یہاں پر میں ہوں نا، میں سارے انتظام دیکھ لوں گا۔ میں حیران تھا کہ ابو جی کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ ایک بھائی اپنی بہن کی شادی میں شامل نہیں ہو سکتا تھا، کیا میری بہن رخصتی کے وقت میری کمی محسوس نہیں کرے گی؟ کیونکہ ہر بہن بیٹی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بھائیوں اور باپ کے سائے میں رخصت ہو۔ مجھے خود پر غصہ آیا کہ میں اس شہر میں نوکری کے لیے آیا ہی کیوں ہوں۔ تایا اور ان کی فیملی شادی میں شامل ہونے کے لیے گئے ہوئے تھے، میں ہی ایک بد قسمت تھا جو کہ اپنی بہن کی شادی میں شامل نہ ہو سکا۔ شادی جمعے کے دن ہو گئی، میری چھٹی اتوار کی تھی۔ میں نے صبح صبح اپنا ضروری سامان بیگ میں رکھا اور بہاولپور کے لیے نکل پڑا۔ جب میں گھر پہنچا، دروازے پر دستک دی تو دروازہ ماں نے کھولا۔ مجھے دیکھ کر ماں کے چہرے پر خوشی اور گھبراہٹ دونوں ہی سائے چھلک رہے تھے۔ میں نے ماں سے سلام کرنے کے بعد یہ جانتے ہوئے بھی زینب کی شادی ہو چکی ہے اسے پاگلوں کی طرح گھر میں ڈھونڈنے لگا۔ مجھے ایسے زینب کو ڈھونڈتے ہوئے دیکھ کر ماں بولی بیٹا تو جانتا ہے نا تیری بہن کی شادی ہو چکی ہے اور وہ اس گھر سے رخصت ہو کر اپنے سسرال چلی گئی ہے۔ مجھے زینب کے بغیر گھر بہت خالی لگ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں ابو سے اجازت لے کر زینب سے ملنے کے لیے چلا جاؤں۔ دوپہر کے وقت جب ابو دکان سے کھانا کھانے کے لیے گھر آئے تو میں نے ابو جی سے کہا میں زینب سے ملنا چاہتا ہوں، زینب کے بغیر میرا دل بہت اداس ہو رہا ہے، میں اپنی بہن کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو ابو جی گھبرا بولے بیٹا تم وہاں کیا کرنے جاؤ گے؟ جب وہ ادھر آئے گی تو اس سے مل لینا، وہ بہت امیر خاندان میں گئی ہے اور تم ایک چوکیدار کی نوکری کرتے ہو، یہ نہ ہو کہ تمہارے وہاں جانا ان لوگوں کو اچھا نہ لگے اور تمہاری وجہ سے تمہاری بہن کا گھر خراب ہو جائے۔ ابو جی کی یہ بات سن کر میں سوچ میں پڑ گیا کہ کیا چوکیدار کی بہن ہونا کوئی جرم ہے کہ اس کی وجہ سے اس کی بہن کو اپنے بھائی سے ملنے بھی نہ دیا جائے۔ میں نے ابو جی سے زینب کے گھر کا پتہ معلوم کرنے کی کوشش کی لیکن مجھے اس کے گھر کا کوئی پتہ نہ ملا۔ آخر کار 3 دن گھر میں گزارنے کے بعد میں نے اپنا سامان باندھا اور پتوں کی کو روانہ ہو گیا۔ جب میں ہسپتال گیا تو مجھے پتا چلا کہ مجھے نوکری سے نکال دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے ایک چھٹی کی بجائے 3 چھٹیاں کی تھی۔ جب میں ہسپتال سے واپس تایا کے گھر لوٹا تو تایا بھی غصے میں تھے۔ وہ بولے میں نے نوکری بڑی مشکل سے تمہارے لیے ڈھونڈی تھی اور تم نے اسے بھی ہاتھ سے گوا دی۔ میں نے تایا سے کہا آپ کے تو بہت جاننے والے ہیں، میرا کسی اور جگہ کام کا بندوبست کر دو۔ اگر مجھے کام نہ ملا تو ابو جی بہت غصہ ہوں گے۔ تایا بولے اچھا میں کوشش کرتا ہوں۔ مجھے تایا کے گھر خالی بیٹھے ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا تو میرے ایک دوست کا فون آیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ جس فیکٹری میں کام کرتا ہے
वहाँ पर कुछ लोगों की ज़रूरत है। ये सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। ताया तो घर पर नहीं थे। मैंने ताई से इजाज़त ली कि ताई को बता देना मुझे काम मिल गया है, मैं घर वापस जा रहा हूँ। मैंने वहाँ से भावलपुर जाने वाली बस पकड़ी और घर आ गया। घर जाते ही मैंने अपना बैग रखा और अपने दोस्त से मिलने के लिए चला गया। मेरा दोस्त मुझे अपनी फैक्ट्री में ले गया। इसने मुझे अपने मालिक से मिलवाया तो मुझे वहां पर काम मिल गया। नौकरी बहुत अच्छी थी। मैं बहुत खुश था कि मुझे अपने शहर में काम मिल गया है और मुझे अब कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन बाद मैंने फैक्ट्री जाना शुरू कर दिया। फैक्ट्री का कानून ये था कि हफ्ते में 5 दिन काम करना होता और 2 दिन छुट्टी होती। मुझे घर आए हुए 2 हफ्ते गुजर गए थे, लेकिन अब मैं घर जाता तो मुझे घर काट खाने को दौड़ता था। घर में जैसे रौनक बिल्कुल ही खत्म हो गई थी। मुझे ज़ैनब की बहुत याद आती, लेकिन मैं जब भी अब्बू जी से ज़ैनब से मिलने की बात करता वो मेरी बात को टाल देते कि जब बेटियों की शादी कर देते हैं तो रोज़ रोज़ इनके घर जाना अच्छा नहीं होता। मैं पिछले दिनों में ज़ैनब से मिलकर आया हूँ तो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है। एक दिन मैंने अब्बू से छुपकर ज़ैनब के घर का पता मालूम कर लिया तो मुझे इसके घर का एड्रेस मिल गया। मैंने छुट्टी वाले दिन ज़ैनब के घर जाने का फैसला किया। छुट्टी वाले दिन मैं साफ सुथरे कपड़े पहनकर मिले हुए पते पर पहुंचा। मैं बहुत खुश था कि आज मैं अपनी बहन से मिलूंगा, क्योंकि अपनी बहन को देखे हुए मुझे 2 महीने से भी ज़्यादा गुजर चुके थे। जब मैं ज़ैनब के घर के सामने पहुंचा तो गेट पर 2 हट्टे कट्टे गार्ड खड़े थे। घर बहुत आलीशान और खूबसूरत था। मैंने दिल में सोचा मेरी बहन कितनी खुशकिस्मत है जो इस आलीशान बंगले में रहती है। मैंने दिल में सोचा कि अब्बू जी सच कह रहे थे कि ज़ैनब का ससुराल बहुत अमीर है और महारानी वाली जिंदगी गुजार रही है। जब मैं अंदर जाने लगा तो गार्ड ने मुझे रोक लिया। मैंने इनको बताया कि मैं ज़ैनब का भाई हूँ और इससे मिलने के लिए आया हूँ, तो गार्ड ने मुझे अंदर जाने दिया। जब मैं दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ तो ये देखकर मेरे होश उड़ गए। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। ये घर तो इसी गुंडे का है और वो गुंडा कोई और नहीं, मेरी बहन का शोहर है। मेरी बहन इसके सर की मालिश कर रही थी। जब ज़ैनब की नज़र मुझ पर पड़ी तो इसने फौरन अपने हाथ पीछे कर लिए और भागते हुए आकर मेरे सीने से लग गई। मेरी बहन का शोहर मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और तंज करते हुए बोला कि मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुम्हारी बहन को हासिल करके रहूंगा। देख लो, मैंने अपना कहा सच करके दिखाया और तुम कुछ भी नहीं कर सके। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मुझे अब कुछ समझ आने लगा था कि मुझे दूसरे शहर क्यों भेजा गया और अब्बू जी क्यों मुझे ज़ैनब से मिलने नहीं दे रहे थे। मैं अपनी बहन के सर पर हाथ रखकर इसको दुआएं देते हुए वापस घर लौट आया। घर आकर मैं बहुत रोया। मेरे रोने की वजह पूछी तो मैंने कहा, आप लोगों ने ज़ैनब के साथ ऐसा क्यों किया, इसकी जिंदगी बर्बाद क्यों की, क्यों इस गुंडे के साथ इसकी शादी कर दी। अब्बू जी ये सब सुन रहे थे, कमरे से बाहर आए और बोले, बेटा हमने जो भी किया है ठीक किया, क्योंकि अगर हम ऐसा ना करते तो हम अपने बेटे को खो देते। जिस दिन वो लोग हमारे घर पर आए थे, इसके अगले दिन वो मेरी दुकान पर आए और मुझे उन्होंने ये धमकी दी कि अगर मैंने ज़ैनब की शादी इनके बेटे के साथ नहीं करवाई तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मैंने तुम्हें खोने के डर से ज़ैनब की शादी इनके बेटे से कर दी, क्योंकि अगर मैं ऐसा ना करता तो सच में वो तुम्हें कोई ना कोई नुकसान जरूर पहुंचाते। हम बुढ़ापे में जवान औलाद का दुख नहीं देख सकते, इसलिए मैंने ठीक यही समझा कि ज़ैनब की शादी इससे कर दूं। शादी के बाद ज़ैनब एक बार घर आई थी। इसने बताया कि इसके ससुराल वाले और इसका शोहर इसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं। मैंने कहा, अब्बू जी आप जो मर्जी कह लें, लेकिन मुझे लगता है कि ज़ैनब खुश नहीं है। और फिर वो शहर के मशहूर बदमाश गुंडे हैं, वो कैसे किसी की बहन बेटी को खुश रख सकते हैं। अगर मैं यहाँ होता तो मैं कभी भी अपनी बहन की
की शादी इस इंसान से नहीं होने देता। अब्बू जी बोले, मैंने तुम्हें इसलिए पत्तों की भेजा था ताकि तुम इस मामले से दूर रहो। ऐसे ही दिन गुजरते रहे। ज़ैनब की शादी को 3 साल हो चुके थे। इस दौरान ज़ैनब 2 से 3 बार घर आई थी। 2 साल बाद इसे बेटा हुआ। जब हमें पता चला कि ज़ैनब अस्पताल में है तो हम फौरन अस्पताल चले गए। ज़ैनब की हालत बहुत सीरियस थी। डॉक्टर्स का कहना था कि इसका ब्लड प्रेशर लो हो गया है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई। फिक्र करने की कोई बात नहीं, वो बहुत जल्द होश में आ जाएगी। नर्स ने बच्चा इसके बाप को देते हुए बोला, मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आपका बच्चा सारी जिंदगी अपनी टांगों पर नहीं चल सकेगा। ये सुनते ही मेरी बहन का शोहर जोर जोर से रोने लगा। इतने में डॉक्टर बोले, आपके मरीज को होश आ गया है, अब आप इनसे मिल सकते हैं। मैं, अम्मी, अब्बू भागते हुए कमरे में गए थे। ज़ैनब हमें देखकर बहुत खुश हुई। ज़ैनब को देख के मेरी आंखों में आंसू आ गए तो वो बोली, भाई फिक्र ना करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा बेटा कहाँ है? क्या आपने इसे देखा है? तो मैं बोला, हाँ देखा है, बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। इतनी देर में ज़ैनब के सास ससुर कमरे में आए और बड़े प्यार से ज़ैनब का हाल चाल पूछने लगे। मैं ये सब देखकर हैरान हो रहा था क्योंकि ज़ैनब भी इन्हें अम्मा और अब्बा कहकर पुकार रही थी। ज़ैनब अपनी सास से बोली, माँ असद कहाँ है और मेरा बेटा कहाँ है? मैं इसे देखना चाहती हूँ। तो इसकी सास बोली, बेटी वो कहता है कि मुझ में ज़ैनब का सामना करने की हिम्मत नहीं है। ज़ैनब अपने ससुर से बोली, अब्बू जी आप जाएं और असद को अंदर लेकर आएं। इसका ससुर गया और असद को अपने साथ लेकर आ गया। शर्मिंदगी के मारे असद ने अपनी नजरें झुकाई हुई थी क्योंकि वो ज़ैनब का मुजरिम था, क्योंकि वो गुंडा होने के साथ साथ नशे वाली चीज़ों का भी इस्तेमाल करता था। इसने बहुत से लोगों की बेटियों की इज्जत खराब की थी और आज अल्लाह ने इसको बेटे को इसके किए की सज़ा दी। तो इसे ये एहसास हुआ कि एक औलाद अपने माँ बाप को कितनी प्यारी होती है। बहुत सी बेटियों की जिंदगी खराब की है। असद ज़ैनब के सामने हाथ जोड़े खड़ा था और इससे माफ़ी मांग रहा था कि ज़ैनब मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। शायद आज मुझे इसकी सज़ा मिली है कि मेरा बेटा पैदाइशी अपाहिज है। तो अपने माँ बाप से भी माफ़ी मांगने लगा क्योंकि इसका बाप एक अच्छा इंसान था और वो कोई बुरा काम नहीं करना चाहता था, लेकिन असद की गुंडागर्दी की वजह से वो ना चाहते हुए भी हर बुरे काम में इसका साथ देता रहा। लेकिन दोनों का बर्ताव ज़ैनब के साथ बहुत अच्छा था। वो सगे माँ बाप की तरह इसे प्यार करते थे। असद सबके सामने हाथ जोड़ते हुए बोला, मैं आप सबका मुजरिम हूँ, लेकिन आज से मैं आप सब से वादा करता हूँ कि मैं हर बुरा काम छोड़कर एक अच्छा इंसान बन जाऊंगा। जब तक आप लोग मुझे माफ़ नहीं करेंगे, मेरा अल्लाह भी मुझे माफ़ नहीं करेगा। इस दिन से असद ने हर बुरे काम से तौबा कर ली। जब ज़ैनब का बेटा 3 साल का हो गया तो डॉक्टर ने उम्मीद दिलाई कि ज़ैनब का बेटा बहुत जल्द अपने पैरों पर चल सकेगा। कुछ महीनों तक इसका इलाज चलता रहा और इसके बाद वो पूरी तरह ठीक हो गया। इस दिन असद ने यतीम खाने में खाना खिलाया। इसने हर इस लड़की से माफ़ी मांगी जिसकी इसने जिंदगी तबाह की थी। अब वो एक अच्छा इंसान बन चुका था। आज मेरी बहन अपनी जिंदगी में बहुत खुश है। इसे देखकर मुझे भी बहुत खुशी होती है और मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी बहन अपनी जिंदगी में खुश है। अल्लाह सब की बहनों को ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज। खत्म शुद।